के द्वारा आप सभी के बीच में अवेयरनेस ऑफ डिसलेक्सिया विषय को लेकर एक रचनात्मक प्रोग्राम के रूप में आप सभी के बीच रखा जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परमादरणीय रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आज के इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय प्रीति सक्सेना मैम, असिस्टेंट कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ रीजन हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। मैम को मैं सादर प्रणाम करता हूं और समस्त सीआरसी परिवार की तरफ से मैम का इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के संपूर्ण कर्ता धर्ता, संपूर्ण रचनाकार और इस पूरे कार्यक्रम के रचनात्मक स्वरूप के स्थायित्व प्रदान करता आदरणीय रवीश चंद्र पांडे सर, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय आरआरसी फतेहगढ़ हमारे बीच जुड़ चुके हैं। सर का भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में चीफ स्पीकर के रूप में डॉक्टर साजिया वकार सिद्दीकी मैम, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, हेल्थ माइंड न्यूरोसाइक्रिक क्लिनिक लखनऊ से हमारे बीच जुड़ रही हैं। कुछ ही समय में हमारे बीच होंगी। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ। मित्रों, यह सीआरसी लखनऊ केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक ऐसा अनुभव प्रयास है जो हमारी आपकी बौद्धिक क्षमता, हमारी आपकी बौद्धिक उत्सर्जना को श्रेष्ठता प्रदान करने हेतु और हमें आपको विशेष शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं को समझने, जानने एवं पहचान करके उन पर अग्रभाव करने के लिए एक महत्वपूर्ण भाव अर्पित करता है। मैं कार्यक्रम में ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम के कन्वेनर और इस कार्यक्रम के संपूर्ण कर्ता धर्ता आदरणीय आदरणीय रवीश चंद्र पांडे सर, प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय आरआरसी फतेहगढ़ को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। सर आप आए और अपने महनीय भाव एवं कार्यक्रम से सभी को परिचित कराएं। आदरणीय रवीश चंद्र पांडे सर। धन्यवाद नागेश पांडे जी। मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है? जी सर। जी सर। जी धन्यवाद। A very warm good afternoon to honorable chief guest and guest of honor and all dignitaries present in this webinar. I, on my own behalf and on behalf of my worthy teachers, welcome chief guest of this webinar, Shri Ramesh Kumar Pandey ji, Director CRC Lucknow, Shrimati Preeti Saxena Madam, Assistant Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office Lucknow, learned resource person Dr. Shazia Wakar Siddiqui ji, Shri Nagesh Pandey ji, who is the coordinator of this program, and other officials of Team CRC Lucknow engaged in this webinar, my respected guardians, and all other dignitaries who are present with us in this webinar. Again, welcome to all of you. Friends, the government of India with all its countrymen is celebrating National Dyslexia Awareness Week. See, dyslexia is one of the types of specific learning disorder. It is a disorder that affects reading and language-based processing skills. So it becomes very necessary to recognize these problems in the students by the teachers and parents at an early stage so that we can cater their challenges and can bring them to the level of like a normal child. We can ensure bringing in equality, inclusion in our classrooms as envisaged in National Education Policy 2020. So parents and teachers should be very much aware of the existence of these problems. Awareness about these specific learning disabilities through this webinar, I hope, will strengthen parents and teachers and all of us present here
to bring in equality and inclusion. As we know that in Kendriya Vidyalaya Sangathan, we have a privilege for in admission for such children. But at the same time, we as teachers feel challenges to identify such disabilities in our students. So through this webinar, where the CRC Lucknow has extended his wholehearted support in a very less time to us, I am sure that we will be enabled to equip ourselves to become able to identify such disabilities, such challenges in our students, and will somehow learn some skills to cater these abilities in the best possible manner so that we can equip them as well to ensure their educational aspects. So I once again welcome all of you, including the chief guest and guest of honor and learned resource person who are available with us in this webinar, and request you all to kindly take a wholehearted, aware, interactive participation. Thank you so much, and I hand over mic to Nagesh ji. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आज हम अपने भाव सृष्टम भाव की तरफ और धरातलीय भाव को प्राप्त हमें बौद्धिक सर्जन की तरफ मैं आदर आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय प्रीति सक्सेना मैम। प्रीति सक्सेना मैम असिस्टेंट कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ रीजन के पद पर इस समय अपनी सेवाएं दे रही हैं। आप डीपीएस आर के पूर्व न्यू दिल्ली से शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया आपने। हैज डन हर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम सेंट स्टेफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रख्यात कॉलेज, एक प्रख्यात शिक्षण संस्थान जिससे आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की। आपने संगठन को ज्वाइन किया सन 2000 में और तब आप पीजीटी इंग्लिश टीचर के रूप में आपने संगठन को ज्वाइन किया। आपने रीजनल इंसेंटिव अवार्ड ऑफ केबीएस एज प्रिंसिपल एट सर्विंग द असिस्टेंट कम साइंस 2008 को भी प्राप्त किया एवं केबीएस में रहते हुए आप निरंतर रचनात्मक गतिविधियों को, एकेडमिक व्यवस्थाओं को तथा सोशल सर्विसेज को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पर आपका वृहद भाव रहा है। ऐसी शख्सियत को पाकर यह पटल आज आह्लादित है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय प्रीति सक्सेना मैम को कि आप आए और अपना आशीर्वचन हमारे कार्यक्रम में प्रदान करें। आदरणीय प्रीति सक्सेना मैम। Thank you so much, Nagesh ji, for giving me such a warm welcome. Good afternoon to all. Most esteemed chief guest, Shri Ramesh Pandey ji, Director CRC Lucknow, Dr. Shazia Waqar Siddiqui ji, Consultant Psychotherapist, Program Coordinators, Shri Nagesh Pandey ji and Shri Vikas Mishra ji, Principal KVRRC Fatehgarh, and convener of this program, Shri R.C. Pandey ji, and dear teachers and parents. Kendriya Vidyalaya Sangathan has dedicated an entire month to conduct activities to bring about awareness regarding dyslexia. And I really feel privileged to be part of this awareness program being jointly organized by Kendriya Vidyalaya RRC Fatehgarh and CRC Lucknow. As R.C. Pandey ji said, dyslexia is a type of specific learning disorder in which a person has difficulty in reading, in spelling the words, in writing the words, or pronouncing the words while reading aloud, or connecting letters to the sounds that they make. And the thing is, it can occur in a person with normal vision and intelligence. So let me tell you also that my awareness regarding dyslexia was very, very meager, almost non-existent
till I saw the movie Tare Zameen Pe. And that movie really, brought out this problem and made us aware that such a thing exists. And like in the movie, we as parents and teachers are at sea because we are not aware, though the problem is quite widespread. What do? When we come across such a child, we blame the child for being lazy, for being inattentive, and being generally mischievous, and we label the child as a problem child. The child, on the other hand, also struggles throughout his academic life, develops a so low self-esteem, generally remains miserable, and ultimately lags behind in language skills specifically and in academics as a whole. But the root cause remains unidentified. And so we are not able to provide a proper remediation. And then what happens? That both the child and the system, they both struggle and kind of blame each other. But such children can be helped if they are provided some kind of a specialized education program consisting mainly of personalized, interventions, or with psychological counseling and therapy. And I'm so happy that KVRRC Fatehgarh has taken this initiative to organize this webinar in which Dr. Shazia will tell us how to deal with such problem, how to identify, such problems, and how we can help such children. And I'm sure this program will empower us as teachers and as parents to identify such children and to help them timely, to provide them some kind of a remediation, which will help them to fulfill their potential and to have very satisfying and fulfilling lives ahead. I extend my best wishes to all of you and give my thanks to CRC Lucknow and KVRRC Fatehgarh. Best wishes, everyone. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका आमंत्रण स्वीकारने और व्यस्ततम समय में से हमारे इस पटल पर समय देने हो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आपको सूचित करना चाहूंगा, हमारे चीफ गेस्ट सर इस समय NIS के डायरेक्टर के साथ व्यस्त है और थोड़े समय बाद हमारे बीच जुड़ेंगे। तो हम आज की इस कार्यक्रम की यशस्वी मुख्य वक्ता आदरणीय साजिया मैम के समक्ष अपने निवेदन को लेकर प्रस्तुत हैं। डॉक्टर साजिया वकार सिद्दीकी मैम कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं न्यूरोफिजियोट्री क्लिनिक लखनऊ में एक वृहद भाव में प्रदान कर रही हैं। आप उदार हृदय एवं सहृदयता के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं तथा अपने पेशेंट के लिए एक मर्म स्पर्शी और सहज भाव में प्रस्तुत होने वाली विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी साजिया मैम से जब मेरा कंसल्ट हुआ जुड़ने के लिए, तो उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं कुछ लैकिंग रही, चाहे हमारी तरफ से रही, लेकिन लैकिंग के पश्चात भी उनका विराट हृदय कि वो हमारे बीच है और आज अपनी एक्सपर्टीज हमारे बीच रखने के लिए उपस्थित हुई है। तो मैं ऐसी विराट प्रतिभा को सादर प्रणाम करता हूं, इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं तथा सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय साजिया मैम आए और अपने इस विषयगत भाव को हमारे बीच रखें। आदरणीय साजिया सिद्दीकी। Namaste. Good afternoon to all of you. Good afternoon, Preeti ji and the director and all the dignitaries present over here. So, like Nagesh ji said कि कुछ miscommunication हुआ है। मुझे 5 मिनट पहले पता चला है कि मैं स्पीकर हूँ, तो मुझे पता नहीं था, वो मैंने एक्सीडेंटली ज्वाइन करा, मैंने देखा कि लिंक है, फिर मेरी नागेश जी से बात हुई। एनीवेज, सो प्लीज मैं बहुत वक्त नहीं दे पाऊंगी बिकॉज मेरा क्लिनिक चल रहा है। मैं 10 मिनट में मैं जितनी जल्दी कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझाने की डिसलेक्सिया क्या होता है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आवाज ठीक है। सो मैं प्लीज कोशिश करूंगी और इस जो मिसकम्युनिकेशन है उसके लिए मुझे माफ करें प्लीज।
सबसे पहले हमें ये समझ, जैसे बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा गया है, तारे ज़मीं पर एक परफेक्ट पिक्चर थी ये बताने के लिए कि डिसलेक्सिया एक्चुअली होता क्या है। आप बस ये समझिए कि आप जब हम क्लिनिक, आपके पास एज अ टीचर जब कोई बच्चा आता है, आपको उसका इंटेलिजेंस ठीक लगता है। सबसे पहले अगर कोई भी पढ़ाई लिखाई में कोई तकलीफ होती है, एनी एकेडमिक डिफिकल्टी, उसमें हम 3-4 चीजों को नोट करते हैं। सबसे पहले हम इंटेलिजेंस को देखते हैं, उसके बाद हम इमोशनल इश्यूज को देखते हैं, उसके बाद हम फैमिली इन्वायरमेंट को देखते हैं। तो एज अ टीचर आपको अगर बच्चे की एकेडमिक, देखिए एकेडमिक सबसे ऊपर है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना सबसे पहले एकेडमिक्स अफेक्ट होगा, पढ़ाई लिखाई, स्पेलिंग, साइंस, मैथ्स, उसके पीछे बहुत सी चीजें, तो उसकी असली वजह पकड़ना बहुत जरूरी है। आवाज आ रही है आपको लोगों को मेरी? Am I Yes, audible? you are audible. Yes, you are audible. अच्छा, कहीं से मैसेज आ रहा था, I'm not audible. Anyways, Some network issue. सो अगर आपने ये सब रूल आउट कर दिया है, आपको लग रहा है कि हाँ बच्चे के अंदर कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई इमोशनल इश्यूज नहीं है, वो मेंटली रिटार्डेड नहीं है, उसका आईक्यू में प्रॉब्लम नहीं है, और बच्चे समझने या सोचने की शक्तियां इंटैक्ट हैं, फैमिली भी ठीक है, मगर तब भी बच्चा क्यों फेल हो रहा है, बच्चे की स्पेलिंग मिस्टेक्स क्यों हो रही है, तब हम एक्सप्लोर करते हैं पूरा डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया का मतलब आपको ये समझना है, हम लोग जब डायग्नोस करते हैं, आईसीडी और डीएसएम ये हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज प्रोवाइड करता है। आजकल डीएसएम 5 आ गया है और आईसीडी 11 आ गया है। उसमें इसको लर्निंग डिफिकल्टीज या लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। एलडी 3 तरह का होता है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया एंड मिक्स टाइप। डिसलेक्सिया सिंपल, कहीं ना कहीं राइटिंग में प्रॉब्लम, स्पेलिंग्स में प्रॉब्लम, और हम सुन तो कुछ और रहे हैं, हम लिख कुछ और रहे हैं, हमको रीडिंग में दिक्कत आ रही है। तो डिसलेक्सिया इज रीडिंग डिफिकल्टी, डिस्ग्राफिया इज राइटिंग डिफिकल्टी, डिस्कैल्कुलिया इज मैथमेटिकल डिफिकल्टी। अब आपके पास, आपको कैसे समझ में आएगा, आप कैसे असेस करोगे? अब हर बच्चा तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं भेजोगे ना भाई। आप एज ए टीचर, भाई कितने बच्चों के पास सुविधा होती है कि बच्चे साइकोलॉजिस्ट के पास है, बहुत से कम बच्चों के पास ही प्रिविलेज होता है। तो बहुत से बड़े लेवल पे आप अपने लेवल पे भी काम कर सकते हो। सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करो कि बच्चे को कब से प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये प्रॉब्लम शुरू से ही दिखेंगी। ऐसा नहीं होता कि बच्चे की स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक थी, उसकी रीडिंग बिल्कुल ठीक थी, एकदम से कुछ गड़बड़ हो गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता है। प्रॉब्लम बचपन से ही नजर आती है। सबसे पहले क्या प्रॉब्लम नजर आएगी कि बचपन में आप देखोगे कि बच्चा रिवर्स करता है। रिवर्स करने का मतलब बी को डी, डी को बी, डब्ल्यू को ए, जो सिमिलर लुकिंग लेटर्स होते हैं, सिमिलर लुकिंग, ओ को सी, सी को ओ, डी को ए, अब डी है और सी है, दोनों में सेम है, उसको रिवर्स कर दिया, बी को डी से रिवर्स कर दिया, डब्ल्यू को एम से रिवर्स कर दिया। ये लेटर रिवर्सल बहुत कॉमन होते हैं। दूसरी चीज ये कब होता है, अब रीडिंग में आप देखिए, रीडिंग में कई बच्चे प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, टी को ड़ को ट। तो बचपन में तो हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, बचपन है ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स 5-6 साल से ज्यादा बढ़ी रहती हैं विद कंटिन्यूड एजुकेशन, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बच्चे को राइट अपॉर्चुनिटी दी गई है तब भी बच्चा नहीं कर पा रहा है, तब हम उसको डिसलेक्सिया मानते हैं या लर्निंग डिसेबिलिटी माना जाता है। जैसे आपने देखा हो कोरोना है, 2-2.5 साल से बच्चे स्कूल ही नहीं गए हैं। अब आपको देख रहा है बच्चा हिंदी नहीं पढ़ पा रहा, तो आप उसको एलडी नहीं कहेंगे, क्योंकि बच्चे को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली है। जब तक आप 6 महीने तक लगातार बच्चे को ट्रेन करिए, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम है तब हम डायग्नोज करते हैं कि हाँ एलडी है। अगर बच्चा 2 साल से 2.5 साल से बच्चा स्कूल, स्पेशली प्राइमरी स्कूल के बच्चे, तब हम उसको एलडी डायग्नोज नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने बताया फीचर्स किए, आपको देखना क्या क्या है, आपको ये देखना है कि बच्चे की राइटिंग में, पहले मैं बात करूंगी रीडिंग डिफिकल्टी की, जिसको हम लोग बेसिकली डिसलेक्सिया कहते हैं। रीडिंग डिफिकल्टी में आप देखोगे कि बच्चा, आप जब, जैसे मैंने आपसे कहा एप्पल, ठीक, आपके दिमाग में एप्पल की इमेज बनती है ना कि लाल लाल गोल गोल एप्पल, लेकिन डिसलेक्सिया में वो इमेज सही नहीं होती है। कहीं पे एप्पल लिखेंगे, कहीं पे पैपल पढ़ेंगे, कहीं पे एंड को एएनडी पढ़ेंगे, कहीं पे डीएनडी पढ़ेंगे। शब्दों का ओमिशन होता है। ओमिशन का मतलब आपने लिखा कनक, क न क कनक, ठीक, अब वो क न तो पढ़ लेंगे लेकिन क ओमिट छोड़ दिया, या क न का
क न की जगह म आ जाएगा, क न म कनम, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो लेटर बच्चा जोड़ देता है एक्स्ट्रा और छोड़ भी देता है। गेसिंग बहुत होती है पढ़ते वक्त, मतलब लिख कुछ और रहे हैं, लिखा कुछ और है और गेस कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग कैसे असेस करते हैं? अब जैसे अगर मैं आप लोगों से, आप सब लोग यहाँ पे मौजूद है, मैं आपसे कहती हूँ कि अच्छा आप लोग को मैं बोल रही हूँ कलम कलम, ठीक, म हटा दो तो क्या बचेगा? कल। 1 सेकंड लगा ना बोलने में, आपको सोचना नहीं है। या मैंने कहा कलम कलम में से ल को हटा दो तो क्या बचेगा? आपने सही कहा कम, कम लम कलम, कम बच गया। रीडिंग डिफिकल्टी में ये प्रोफिशिएंसी नहीं आती है, ये नहीं हो पाता है। तो अगर हम आपको आवाज आ रही है आप सबको? जी मैम, आवाज स्पष्ट है। सो ये हो आ रहा है गया मैम, हमारा आ रहा है। रीडिंग डिफिकल्टी। इसी चीज को आप राइटिंग डिफिकल्टी के रूप में भी देखिए। राइटिंग डिफिकल्टी का मतलब होता है हमें किसी भी चीज की एक प्रॉपर स्पेलिंग मालूम ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कलम क्या होता है, कमल क्या होता है, कि हमको सब कंफ्यूज लग रहा है। हमको क से शुरू होने वाले सारे शब्द एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे ही लगते हैं। तो इसी जब हमें कोई कलम बोलता है हम कमल लिखते हैं, क्योंकि हम लेटर्स को रिवर्स कर देते हैं, ल की जगह म की जगह ल। और ये चीज इंग्लिश में भी होती है, ये चीज उर्दू में भी होती है, ये चीज अरबी में भी होती है। आप कोई भी देखिए, एक बात ये बहुत दिमाग में बिठाइए कि अगर कोई लैंग्वेज डिफिकल्टी है तो वो हर एरिया में होगी, वो हर एरिया में पाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इंग्लिश में आप अच्छे हैं और हिंदी में आप बुरे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो अक्रॉस ऑल द लैंग्वेजेस प्रॉब्लम है। अब डिस्ग्राफिया में क्या होता है, जैसे मैंने आपको इसका बताया, स्पेलिंग्स का बताया। अब स्पेलिंग्स में क्या होगा कि आपने एक स्पेलिंग को रट लिया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मैंने कहा कि मैंने अब हिंदी को, अब जैसे अब मैंने कहा क को इंग्लिश में ट्रांसफर करेंगे तो के आएगा ना। लेकिन जिन बच्चों को रीडिंग या की डिफिकल्टी होती है वो इतनी जल्दी चीजों को समझ नहीं पाते, जिसको हम लोग फोनेम कहते हैं इंग्लिश में। फोनिंग का मतलब होता है सबसे छोटा शब्द और वो सुनाई कैसे देता है। तभी जब आपने देखा होगा, जब हम लोग नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग फोनेम्स पे बहुत ध्यान देते हैं। क मीन्स के, अ मीन्स ए, आ, उ। तो शब्दों का इस्तेमाल, और इसको जब हम किसी लेटर में डालेंगे, किसी अल्फाबेट में डालेंगे तो वो कैसा शब्द आएगा। अब ये चीज जो बच्चा नॉर्मल है, जिसको डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया नहीं है, उसकी ये 5 मिनट का काम है, वो कर लेगा। लेकिन जिसको ये डिफिकल्टी होती है वो ये नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे याद है मेरी एक बच्ची थी, उसको डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया दोनों था। वो अगर कोई भी चीज जो जेड से देखती थी ना, वो जीब्रा हो, वो कुछ भी हो, उसको जोमेटो ही पढ़ती थी, क्योंकि वो जेड तो पहचान लेती थी, लेकिन आगे OMOTO है, EBRA है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसको लेटर गेसिंग कहते हैं। लेटर्स गेस बहुत करती थी। अब इसी चीज को आप यूजुअली जब उनकी कॉपी उठाओगे ना, आप जब तो देखोगे बहुत कट्टम कट्टी है, बहुत हैंडराइटिंग बहुत खराब है। हैंडराइटिंग में जो एक और दूसरे शब्द के बीच का जो स्पेस है ना, उसमें इसको बोलते हैं डिसओरिएंटेशन। मतलब कि एक लाइन से चीजें नहीं लिखी गई हैं। एक शब्द यहाँ है, एक लेटर यहाँ है, एक लेटर यहाँ है, जो लेटर से चिपका हुआ है। तो आपस की जो लेटर स्पेसिंग होती है उसमें भी बहुत गड़बड़ होती है। उसके बाद बहुत कंफ्यूज्ड राइटिंग होती है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, फिर काटा है, फिर आगे लिखा है, फिर काटा है, फिर आगे लिखा है। कहीं पे ए को पी लिख दिया है, कहीं पे पी को बी लिख दिया है। पढ़ सही रहे हैं लेकिन बोल गलत रहे हैं। तो आपने जिसको डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया होता है, उनकी ओरल अगर आप टेस्टिंग करो ना, तो ओरली बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो बेवकूफ नहीं है, पहले तो ये समझिए, वो मेंटली रिटार्डेड नहीं है। लेकिन उनका ये जो हरफों को जोड़ना बोलना, जो कि बहुत ही अनकॉन्शियस प्रोसेस है। मैं आपने बोला एप्पल, मैंने दिमाग में लिखा APPL, ये कितना 1 सेकंड का काम है हमारे लिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए 1 सेकंड का काम नहीं। जिनको डिस्लेक्सिया, वो ये कनेक्शन फॉर्म नहीं कर पाते कि ए का मतलब अ की आवाज, पी की मतलब प का आवाज, वो नहीं कर पाते। और फिर जो वो सुनते हैं, इसलिए वो, तो जब भी हम लोग डिस्लेक्सिया का ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग सबसे पहले रीडिंग को ठीक करते हैं। रीडिंग को ठीक करेंगे तब जाकर के उनकी स्पेलिंग्स भी ठीक होंगी। अब यही चीज आप मैथ्स में देखिए, बहुत अच्छा है बच्चा लेकिन मैथ्स में डब्बा गोल, 2 + 2 4 नहीं आ रहा।
अब बचपन से कैसे शुरू होगा? प्लेस वैल्यूज में गड़बड़, 0 को 100 के प्लेस, अब हम लोग क्या करते हैं 0, 100, 1000 ऐसे करते हैं ना, तो 0 की जगह 100, 100 की जगह प्लेस वैल्यू का पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़, प्लस माइनस में दिक्कत हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। मेंटल मैथ्स तो समझ ही नहीं आ रही कि मेंटल मैथ्स होती कैसे। आप 50 बार पढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ब्रैकेट कहाँ खोलना है, ब्रैकेट कहाँ क्लोज करना है, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। और जिसको डिस्कैलकुलिया होता है उसको साइंस में भी प्रॉब्लम होती है यूजुअली, बिकॉज दोनों एनालिटिकल सब्जेक्ट्स हैं, दोनों को समझने में दिक्कत है और बेसिक कैलकुलेशन में ही मिस्टेक करेंगे। समझ तो जाएंगे कॉन्सेप्ट लेकिन उसको अपने पेपर पे उतार नहीं पाएंगे। तो जब इस तरह का बच्चा आपके पास सामने आता है तो आपको 6 महीने तक पहले उस बच्चे को ट्रेन करना है। अब ट्रेनिंग कैसे होती है? सबसे पहले ये समझना है, एक मैथ्स की कॉपी होती है ना, मैथ्स की जो चौखाने वाली कॉपी होती है, उसमें सबसे बड़ा बड़ा ए और अ लिखिए। पहले तो फोनेम्स करेक्ट करने हैं कि ए का मतलब अ का मतलब ए। अब मैंने बोला ए, तो ए वाली आवाज और किन किन शब्दों में आती है, वहां से हम लोग फिर शुरू करते हैं। अब बड़ा एक ही शब्द को लिखवाते हैं कि एप्पल मैंने लिखा, तो जैसे यूजुअली हम लोग कॉपीज पे लिखवाते हैं एक स्पेलिंग, ऐसा नहीं करना होता है। अगर किसी बच्चे को डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया है तो उसको लंबे पेज तक 5 मिनट पेज पर बड़ा लिखवाना होता है, क्योंकि जो चीज जितनी बड़ी होती है उतनी देर तक हमारे दिमाग में बैठती है। यही चीज हम मैथमेटिक्स के लिए भी करते हैं। पहले बेसिक से शुरू करते हैं, फिंगर काउंटिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 और 5 + 5 10। इस तरह से हम धीरे धीरे, और डिस्लेक्सिया का ये कोई बीमारी नहीं है, इसका मैनेजमेंट होता है, इसके लिए स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं और एक लंबी ट्रेनिंग से ये प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाती है। और आप लोग ये भी समझिए, क्योंकि आप लोग टीचर्स हैं, आपको ये भी समझना है कि सीबीएसई में और आईसीएसई में इसके कंसेशंस मिलते हैं। मैंने बहुत सी रिपोर्ट्स बनाई हैं जिसपे मैं रिकमेंडेशंस देती हूँ सीबीएसई को, ऐसे कि बच्चा डिस्लेक्सिया है और डिस्लेक्सिक या डिस्ग्राफिया या एलडी होने के लिए 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे होना चाहिए, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे प्रॉब्लम है लेकिन इतनी नहीं है तो वो लर्निंग डिफिकल्टी माना जाएगा, तब मुझे कंसेशंस नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मेरा ये एवरेज बेल शेप्ड कर्व होता है, कर्व जब हम लोग कर्व कर लेते हैं तो बीच में नॉर्मल है, इधर उधर एक्सट्रीम पे बच्चे जिनको प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर ये एक फॉर्मूला होता है, अगर बच्चे का आईक्यू ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन उसकी पढ़ाई उसे मैच नहीं कर रही है, पढ़ाई में एकेडमिक फेलियर ज्यादा हो रहा है, तो हम लोग असेस करते हैं। और अगर अपने 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अगर नीचे है तो हम उसको डिसेबिलिटी मानते हैं और हम ढेर सारे सेक्शंस में उसको फिर रिकमेंड करते हैं कि बच्चा जाके असेसमेंट करवाए, और अगर वो एलडी है तो उसको फिर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिलता है और बोर्ड में बहुत सारे कंसेशंस मिलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन एज अ टीचर आपको जाननी बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से मेरा मैं निकलती हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें, क्योंकि मेरा क्लिनिक चल रहा है। और आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ समझ में आया आप लोगों की, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, मतलब अगर बहुत शॉर्ट था, लेकिन बस बेसिकली समझ लीजिए, बेसिक समझिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। मैडम, हमारे like प्रतिभागियों में से can अगर we किसी have some प्रतिभागी का ready-made जी tool with us as you know, as a school teacher, which we can we have any such ready-made tool, like maybe a checklist or something through which other than our common observations we can verify and get sure ki there is some problem in these areas, and then we can see. Absolutely, there are checklists available on the net, and there are checklists available, और बहुत ढेर सारे साइकोलॉजिकल टूल्स भी हैं। एज ए टीचर, जैसे मैंने कहा, 2-3 चीजों को ऑब्जर्व कर लीजिए। बच्चे का इंटेलिजेंस कैसा है, नंबर 1, मतलब क्लिनिकली आपको देखने में कैसा लग रहा है, बच्चा हर काम कर पा रहा है कि नहीं, मगर तब भी उसका इंटेलिजेंस और उसका एकेडमिक्स में बहुत डिफरेंस है। दूसरी चीज, स्पेलिंग्स कैसी हैं, उसकी स्पेलिंग्स बचपन से कैसी आई हैं, क्या बार बार मिस्टेक करता है, दिस को दैट लिखता है, दैट को दिस लिखता है, इसको टी कर देता है, टी को कुछ और कर देता है, और क्या बहुत अटक के बच्चा पढ़ता है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है। बाकी ओरली पूछो तो सब सही है, ओरली परफेक्ट, लेकिन राइटिंग में दिक्कत, या मैथ्स का भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर ये 2-3 क्वेश्चंस जो आपको, अगर आपने कहा कि हाँ इसमें टिक है, तो फिर आप एक प्रोफेशनल को बच्चे को रेफर कर सकते हो। any such checklist would you like to recommend? सर चेकलिस्ट का सच नहीं है, लेकिन आईसीडी और डीएसएम का क्राइटेरिया फ्रीली अवेलेबल इंटरनेट पे। It is, ma'am, can you pronounce ICD. ICD?
यस, I इंटरनेशनल see. क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस या DSM-5, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल। इसका क्राइटेरिया अगर आप टाइप करोगे नेट पे DSM क्राइटेरिया फॉर LD लर्निंग डिसेबिलिटी, तो वो पूरा क्राइटेरिया आ जाएगा और उससे आप मैच कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि है, फिर आप एक प्रोफेशनल को रेफर करिए। Right. Thank you. Okay, thank you then. I take my leave. Any other question? Good afternoon, ma'am. Good afternoon. बताइए। ज्योति जी, आपका कोई प्रश्न हो तो आप मैम के समक्ष रखें। You can type also. हाँ, शायद she has lost network probably. तो नागेश जी, you can move ahead, नागेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय निकाला थैंक यू, और थैंक यू। इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से। अब मैं अगले Thank वक्ता you. के क्रम में आदरणीय राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ CRC लखनऊ को सादर आमंत्रित करूंगा कि सर आप आए और इस विषय पर और अधिक विशेषज्ञताओं को, और जैसा सर ने प्रश्नों में कहा कि हम कैसे उनको समझ पाएंगे, कैसे जान पाएंगे और कैसे उनका चिन्हांकन कर पाएंगे, इन बिंदुओं पर और अधिक प्रकाश डालने की कृपा करें। आदरणीय राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर CRC लखनऊ। राजीव सर। I feel there is some network issue and he will be joining us very soon. I request all the audience here, if you have any question, you can type in the message box and try to avoid general remarks because it distracts the speaker. जो बोल रहे होते हैं, अगर हम उनको कॉमन मैसेजेस पोस्ट करते हैं, so it distracts the attention of that speaker. So if we really have some genuine question with us, then हमें उसे जो मैसेज बॉक्स है चैट बॉक्स में टाइप करना है। and I hope Nagesh Pandey ji and Rajiv Ranjan ji will be joining us very soon. You can all the worthy teachers and guardians who are with us here, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप कृपया इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। सर, अभी कुछ टेक्निकल रीजन के कारण राजीव सर नहीं जुड़ पा रहे हैं सर, और उसके क्रम में हम लोगों को कार्यक्रम को मूव आउट करना पड़ेगा सर। मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं इस सीरीज को या इस कार्यक्रम के इस अगले पड़ाव को लेकर के हमें पुनः आना होगा। और जैसा कि आपने चेकलिस्ट की बात की, उस पर एक संपूर्ण 45 मिनट का यह समझने के लिए, जानने के लिए और बोधयुक्त होने के लिए कि कैसे हम उस पर और अधिक काम करके बच्चों का चिन्हांकन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली इंटरवेंशन कैसे कर पाएंगे, उस पर हम एक अगली सीरीज अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन RRC फतेहगढ़ के साथ पुनः आप सभी के बीच लेके आएंगे। आज कई समस्याएं टेक्निकली तौर पर हम लोगों को परेशानी कर रही हैं, जिसके कारण हम लोग कार्यक्रम को यहीं पर पूर्ण करने की तरफ बढ़ेंगे। मैं आदरणीय पांडे सर से सादर प्रणाम से क्षमा याचना करता हूं कि इसकी अगली कड़ी को लेकर हम बहुत ही जल्द सभी श्रोताओं के बीच में उपस्थित होंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के कार्यक्रम के लिए। एक पूर्ण मनोयोग से भावित होकर के हमारे बीच अपनी बात रखने के लिए, जो पटल प्रदान करने की बात
आदरणीय रमेश पांडे सर ने कही, और रमेश सर ने जब यह बात सीआरसी को मेल के द्वारा बताई, फोन के द्वारा बातचीत हुई, उसी दौरान यह लग गया था कि हम लोगों को इसकी 2 कड़ियों को लेके आना होगा, लेकिन हम संपूर्ण 2 कड़ियां लेके आने में सफल हुए। यह कड़ी हमें आधे में पूर्ण करनी पड़ रही है, लेकिन अगली कड़ी जो कि जल्द ही 15 से पहले ही हम लोग लेके आपके बीच आएंगे, वह चेकलिस्ट के साथ आएंगे और वह आप सभी के बीच पीपीटी के द्वारा या पीडीएफ के द्वारा आप सभी के बीच प्रसारित भी की जाएगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे सर का करता हूं कि जिनके इनिशिएटिव से आज हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं और अगली कड़ी लाने में अपनी सक्षमता को पूर्ण करने में भावित हो रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, जो जुड़ तो नहीं पाए लेकिन उनका आशीर्वचन हम सभी के साथ रहा, आदरणीय रमेश पांडे सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रदान करने वाली गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय प्रीति सक्सेना मैम का, असिस्टेंट कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस लखनऊ का, जिनका हमें आशीर्वचन मिला और निरंतर केंद्रीय विद्यालय संगठन के उत्कृष्ट कार्यों, शैक्षणिक कार्यों में जिनका अनुभव हमें निरंतरता के साथ अग्रमुख कर रहा है। मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर साजिया वकार सिद्दीकी मैम का, जिन्होंने सूक्ष्म समय ही लेकिन हमें विषयगत भावों को प्रदान किया। मैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा इस कार्यक्रम के संपूर्ण रचनाकार श्री पांडे सर को और कार्यक्रम के आयोजक श्री विकास मिश्र सर को, समस्त प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और धन्यवाद के साथ यह आमंत्रण भी दूंगा कि निकट ही कुछ ही दिनों के पश्चात इसकी अगली सीरीज आएगी और प्रमुखता के साथ वह सीरीज आपके बीच होगी। वहां पर हम इस कार्यक्रम की पूर्णता की पूरे मनोयोग से पूर्ण करके और आपके बचे हुए प्रश्नों का उत्तर डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सभी के बीच रखेंगे। यह कार्यक्रम यहीं पे पूर्ण होता है। आप सभी को सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम। थैंक यू सर। धन्यवाद पांडे जी। और सभी जो यहाँ पर मेरे साथ अभिभावकगण, गार्जियंस और विद्वान शिक्षक जुड़े हैं, आपका सभी का धन्यवाद इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए। और विशेष धन्यवाद नागेश पांडे जी का। मैं आपसे बराबर संपर्क में था और मैं समझ रहा था आप छुट्टी पर हैं और कुछ पारिवारिक ऐसी हैं घटनाएं जिनमें से वो गुजर रहे हैं, लेकिन इसके पश्चात भी आपने जो हमें सहयोग प्रदान किया है उसके लिए मैं वास्तविक रूप में आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। आपने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी इसे हमारे जो आमंत्रण है उसे आपने सहर्ष स्वीकार किया, हमारा निवेदन, और उस पर आपने एक ये हमारे लिए जो भी आपने सेशन आज किया है इसमें जो हमारी विद्वान रिसोर्स पर्सन मैडम रही हैं, उन्होंने भले ही थोड़े समय में लेकिन बड़ा व्यवहारिक ज्ञान आज हमें दिया, जो कि हमें निश्चित रूप से कक्षाओं में विद्यार्थियों की इस तरह की जो विकार हैं उनको पहचानने में अवश्य मदद करेगा। और फिर अगले चरण में जब हम पहला डायग्नोसिस ऑब्जर्वेशन का होगा, उसके लिए आज उन्होंने बड़ा ही एक तरह से स्पष्ट रूप से हमको आज बताई बात। तो हम नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करना है उसके लिए भी हम निश्चित रूप से आपसे सहयोग अपेक्षित करेंगे और निकट भविष्य में जल्द ही आपसे बात करके और हम फिर से एक बार यहाँ पर उपस्थित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।